All, I'm starting the chapter. Name is The Address, written by Marga Minko. It is very interesting chapter, and I'm going through the chapter. First, we have to know about the chapter introduction, so that it will be very clear. The Address by Marga Minko is a very touching story of psychological internet. It explores the working of a young man in war times. During World War II, the Germans, the Nazis under Hitler, invaded Holland, where 90% of the people were Jews. Many of the Jews fled in fear to other countries. Thousands were imprisoned in concentration camps. A woman and her little daughter had also to leave their home. The woman left all her things with a woman known to her. After some time, the woman died and her house was destroyed. However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. उनके बेटी को याद था कि उनकी मम्मी जो है कहाँ रहती थी जब उनके घर को पूरे बर्बाद कर दिया गया और वो लेडी मर गई. Long after the war, she came to the town where she used to live with her mother. She went to meet the man with whom her mother had left all her things. वो उनसे भी मिलने गई जिनको जब वो वहां से छोड़ी. तो उनकी मम्मी ने जिनके साथ जो नेबर या उनके बगल में रहने वाली लेडी के साथ उनकी मम्मी सबको छोड़ दी थी वहां उनसे भी मिलने गई. बट द वुमन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी डिडंट वांट टू रिटर्न द थिंग शी हैड टेकन. बट वो लेडी उसे पहचानने से इनकार कर दी कि मैं तुम्हें नहीं जानती कि क्योंकि वो इसीलिए ऐसा इनकार कर दी सो दैट कि उनकी मम्मी का सारा सामान उन्हें रिटर्न करना पड़ता. इन द स्टोरी द डॉटर डिस्क्राइब हाउ द फील ड्यूरिंग द विजिट एंड लेटर ऑन द सेकंड विजिट. इस स्टोरी में हम यही जानेंगे कि ये एड्रेस जो दिया गया एड्रेस इसीलिए बताया गया यहाँ पर कि जो जहाँ पर उनकी मम्मी रहा करती थी उस गर्ल के आजू बाजू यदि मिलने गई तो उन्हें क्या वहां पर मिला और सेकेंड टाइम मिलने गई तो भी फिर क्या मिला और उसे क्या फीलिंग हुआ ये हम इस स्टोरी में जानेंगे. इट इज ओनली इंट्रोडक्शन. ये जो मैंने बताया ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने बताया. नाउ आई एम गोइंग थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब हम जाएंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाएंगे चैप्टर को क्या हमें यहाँ सीखने को मिलता है ये हम जानेंगे इस चैप्टर में. Clear? The story begins with the narrator coming back to her country after the war to see a woman named Mistress Darling. Clear? The story begins with the narrator coming. Narrator यहाँ आया. That means writer और narrator both are same. दोनों के दोनों एक ही हैं. Narrator भी और writer भी. The narrator tells the lady that she is the daughter of Mistress S and she has come to take her mother's belonging. अब यहाँ वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी का जो भी सामान है वो मैं लेना चाहती हूँ. The lady is surprised to see the narrator and hides herself behind the door, denying knowing anybody by the name of Mistress S. The narrator, for a moment, believes that she has come to a wrong address. अब उनको ऐसा होता है कि जहां मैं आया वो जगह सही नहीं है, एड्रेस जो गलत है. बट when she noticed the lady wearing her mother's cardigan, she becomes sure that she was come to the right place. जब वह नेटर ने देखी या गर्ल ने अपने डॉटर मम्मी की डॉटर इन्होंने जब ये देखी कि ये जो लेडी जो पहनी हुई है वो वही चीज पहनी है जो सामान उसकी मम्मी की थी वही लेडी पहनी है. तो ये समझ गए कि इनके पर आइडेंटिफाई करने के बाद कि ये जो जगह जो मैं सर्च करने आया था जिनसे मुझे मिलने आया था वही जगह है. दैट मीन्स वो सही जगह पर आई है. द लेडी क्लोजेज द डोर ऑन द नेरेटर. नेरेटर को देखते ही वो लेडी क्लोज कर लेती है डोर को जो उनकी मम्मी के जहां पर उनकी मम्मी ने सामान रखे थे जो लेडी को दी थी. द नेरेटर लीव्स टू गो बैक टू द स्टेशन. On her way back, she remembers her past. In the past, when the narrator had come home, she had found something missing. On asking, her mother had told her that Mr. Darling, an acquaintance of hers, was kind enough to take their valuable with her. She would keep them safely in her house.
so that during the war, if they had to leave the country, their valuable would be safely kept in her with her. The narrator got glimpses of Mr. Darling while she was moving out of her house with a heavy suitcase. It was at that time that her mother had told her Mr. Darling's address, 46 Marconi Estate. ये चीज उनको बताया गया था. It was that time that mother had told her. बात साफ साफ बताया गया था, मिस्टर स्टॉर्लिंग्स एड्रेस 46 मार्कोनी स्टेट्स. जब वो स्टेशन पे आई तब उनके दिमाग में बहुत सारी बात चलने लगी, बिकॉज वो जो लेडी थी वो रिकॉग्नाइज करने से नहीं कर पाई, या तो पहचान ने बोली कि मैं जानती ही नहीं हूँ तुम्हें, न तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ, बट वो थिंग से पहचान गई कि यह जहाँ पर मैं आई हूँ वो सही जगह पर आई थी. बट वो जब गेट क्लोज कर लेती है तो वो नरेटर वो जो है स्टेशन की तरफ बढ़ जाती है. अब उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही है. As she continued to walk back to the train station, she saw old estates that were burned up and old memories ran through her body. वो जो ओल्ड स्टेट देखी तो उनके मन में बहुत सारी यादें आने लगी, बचपन की यादें. She decided to make one more try and went back again to Mr. Darling's house. अब वो सोची उनके मम्मी के साथ जो पड़ोसी रहने वाली थी मिस्टर स्टॉर्लिंग्स हाउस, वहां फिर एक बार जाए. एक बार तो उन्होंने डोर को क्लोज कर ली, फिर एक बार ट्राई करते हैं. This time a little girl, Mr. Darling's daughter, opens the door. इस बार मिस्टर डॉर्लिंग ने गेट ओपन नहीं किए बल्कि उनकी डॉटर ने ओपन किए एंड इनवाइट्स द नरेटर इन. और यहाँ पर उनकी मम्मी और नरेटर की मम्मी, दोनों की मम्मी अपने टाइम में एक दूसरे को जानती थी. यहाँ पर डॉर्लिंग्स की डॉटर नरेटर को नहीं जानती है और उसे बहुत अच्छे से इनवाइट की, बहुत अच्छे से वेलकम करके अंदर बुलाई नरेटर को. As the narrator moves, she informs that her mother has not burnt tablecloth, the pewter plates, and even the silver cutlery was there. The narrator feels disgust to see her things being used and arranged in a tasteless and callous manner. She realizes that those things were important to her as they were associated with her mother and her past life, not disconnected from them and being used so carelessly, those things had no value for her. She lives without meeting Mistress Darling or taking her mother's belonging and consoles herself thinking that she now lives in a small rented apartment and has no place to keep the thing. यहाँ पर जैसे ही नरेटर ने वहां बैठी उसके अंदर तो सारी बातों को, बहुत सारी चीज को फील करने लगी, समझने लगे. और ऐसा समय आया कि वो अब अपने आप को मिस्ट्रेस डॉर्लिंग से मिले बिना वो वहां से जाना चाहती है, बिकॉज शी नो वेरी वेल कि जो उनकी मम्मी का जो सामान था, जो भी उनके पास था, वह सब कुछ यहाँ पर उनकी याद के रूप में है. एंड शी नाउ लिव्स इन अ स्मॉल रेंटेड अपार्टमेंट एंड हैज नो प्लेस टू कीप द थिंग्स. डिसाइड टू गो बैक. अब नरेटर चाहती है कि एड्रेस तो मुझे मिल गया और सही मिला था, फर्स्ट टाइम भी मिला था, सेकेंड टाइम मुझे अंदर जाने को भी मिला. नाउ नरेटर क्या डिसाइड किया? शी डिसाइड्स टू गो बैक एंड फॉरवर्ड द एड्रेस. अब वो चाहते कि एड्रेस भूल जाऊं. फर्स्ट टाइम उसे एड्रेस याद नहीं आ रहा था, उन्होंने याद भी आया. याद आने के बाद वो जगह पे गई, जब सिचुएशन सब कुछ देखी तब वो अब जो है वो एड्रेस को भूल जाना चाहती है. सिचुएशन देखने के बाद शी हैड लेट गो ऑफ एंड फॉरगॉटन मैनी सॉरफुल थिंग्स इन द पास्ट. जो भी दुखी वाली बातें, जो पास्ट की बीती हुई बातें थी, दर्द भरी बातें थी, सब कुछ को भूल जाना चाहती है. शी फील्स दैट कंपेयर्ड टू दैट दिस विल बी द इजीएस्ट थिंग टू फॉरगेट. बोला सबसे अच्छा यही है, यदि मैं भूल जाऊं तो अच्छा है. और इस तरह से नेटर ने एक एड्रेस के बारे में बताई और वो अपने बचपन से अपनी मम्मी की यादों में उस एड्रेस से भी चली गई. अगेन उसे आगे जाने के बाद सब कुछ समझ में भी आई और आने के बाद वो अब चाहती है कि वह एड्रेस को भूल जाए. एंड दिस विल बी इजीएस्ट थिंग टू फॉरगेट. और सबसे अच्छा यही होगा कि उसे भूल ही जाऊं. थैंक यू सो मच.